Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, as you know that we are discussing here biomolecules, and in last two classes we have just covered carbohydrate and protein, two biomolecules, children, in two classes. As you know that in this chapter we have to discuss about carbohydrate, protein, fat molecules which are said to be as lipid, then enzymes and nucleic acid. इन सभी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। आप देख रहे हैं काफी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बायोकेमिस्ट्री पे बेस्ड चैप्टर है। हम देख रहे हैं दो क्लासेस में, एक क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट उनके टाइप्स और दूसरे क्लास में प्रोटीन और उसके चार स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और मीनवाइल द टाइम मैं अभी रिकैप्चुलेट भी कराऊंगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड बायोमोलिक्यूल, दैट इज एंजाइम्स। चिल्ड्रेन, एंजाइम्स वर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय कुहने। ध्यान से सुनिएगा, कुहने ने KUHNE, कुहने ने सबसे पहले एंजाइम को खोजा। एंड एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन फैक्ट। चिल्ड्रेन लिसन very carefully. Enzymes are biological catalyst and all the enzymes, 99.9% enzymes are proteinaceous in nature, made up of protein, except one, that is ribozyme. Please note in your mind, and after the class please note in your fair notebook also that only one enzyme that is non-proteinaceous in nature, that is ribozyme, secreted by nucleolus. ओके, तो न्यूक्लियोलस, अब आरएनए सिंथेसिस में इसका रोल 12th क्लास में पढ़ेंगे। राइबोजाइम, दैट इज ओनली द एंजाइम which is stride in nature, fatty nature, and except ribozyme, all the enzymes, 99.9% enzymes are proteinaceous in nature. Students, in definition you are saying enzymes are proteins that functions as biological catalyst. Simple definition है enzyme का, biological catalyst, because it catalyzes the metabolic activities, the biological activities, the life process, the vital process, the physiological process. Okay, that's why enzymes are said to be as biological catalyst. And a catalyst is a substance that speeds up a chemical reaction. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैटलिस्ट को कि कैटलिस्ट आर सच सब्सटेंसेस दैट स्पीड्स अप, दैट enhance the rate of chemical reaction. But here is not changed by the but is not changed by the reaction. लेकिन कैटलिस्ट लास्ट में फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होती है। जहां तक एंजाइम की बात है बच्चों, एंजाइम इज नॉट अ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट because it speeds up the biological activities, the metabolic activities, and enzymes catalyze all aspects of cell metabolism. सेल के सभी मेटाबॉलिज्म को एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं बच्चों। So what are enzymes? See and listen very carefully here. Enzymes are typically protein. 99.9% enzymes are proteinaceous in nature. I have already told you. And enzymes are specific. देख रहे हैं आप कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं बच्चों, यानी पर्टिकुलर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन टू स्पीड अप द पर्टिकुलर रिएक्शन। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन, किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्पीड अप कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो वह प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और ट्रिप्सिन अगर फैट को डाइजेस्ट करता है तो वह फैट को डाइजेस्ट करेगा। सिमिलरली, अगर एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो वह स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, जबकि लाइपेजेज अगर फैट को इमल्सिफाई करते हैं, तोड़ते हैं, तो वह फैट को ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों। इट मीन्स enzymes are particular, enzymes are specific. ओके, द वर्क ऑफ एंजाइम इज स्पेसिफिक। आगे चल के भी मैं आपको आज ही की क्लास में एंजाइम की फंक्शनिंग भी दिखाऊंगा बच्चों। बट वन बाय वन, एंजाइम्स acts as catalyst. You are seeing here, enzymes acts as catalyst to speed up the rate of reaction of a biological process. That's why enzymes are said to be as biological catalyst. And enzymes are not used up by the reaction. ध्यान दीजिएगा, enzymes are not used up by the reaction they catalyze. जिस रिएक्शन को एंजाइम कैटलाइज करते हैं वहां पर एंजाइम यूज नहीं होते हैं। एंजाइम्स remain same physically and chemically at the end of
reaction. They only catalyze the chemical, the biological reaction. In fact, and you are seeing here the introduction of enzymes. Enzymes are biological catalysts. These points which you have to write in your fair notebook also. Enzymes are biological catalysts. Almost all the enzymes are specialized proteins. 99.9% you are knowing now. राइबोजाइम मैंने आपको पहले ही बताया था राइबोजाइम्स दैट इज द एक्सेप्शंस दे आर आरएनए with catalytic properties they are just secreted through nucleolus in 12th class during genetics you will discuss about this enzyme children and important characteristic features you are seeing that the catalytic power ratio of enzyme catalyze the rate of reaction to the uncatalyzed rate. Okay, इससे कैटेलिटिक पावर का पता चलता है एंड रेगुलेशन की कैसे एंजाइम कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्शंस को. तो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की कैटेलिटिक पावर के रिगार्डिंग और रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रिगार्डिंग. नाउ चिल्ड्रन यू आर सीइंग हियर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. अगली जो कड़ी है एंजाइम्स की दैट इज नॉमेनक्लेचर. अब अलग अलग नाम देखते हैं कभी पेप्सिन कभी पॉलीमेरेजेज कभी जो है पेप्सिन कभी लाइपेजेज कभी एमाइलेजेज. तो ये नाम एंजाइम्स के नाम ध्यान दीजिएगा. nomenclature of enzyme. An enzyme is named according to the name of the substrate it catalyzes. ध्यान दीजिएगा जिस सबस्ट्रेट के साथ में एंजाइम जुड़ता है ES कॉम्प्लेक्स बनाता है दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अभी मैं आगे बताऊंगा भी बच्चों एंजाइम का एक्शन दैट इज सेड टू बी एज लॉक एंड की मॉडल. जिस तरह हमारे घर में अलग अलग रूम्स की अलग अलग लॉक्स होते हैं और उनकी की भी अलग अलग होते हैं हम देखते हैं. ऐसा नहीं कि किसी भी की से कोई भी लॉक खुल जाए. तो because locks are specific, keys are also specific. Similarly, enzymes are specific in nature. So enzymes bind with the particular substrate to catalyze it, and that's why it form firstly the enzyme substrate complex. जिस तरह कोई पर्टिकुलर चाबी किसी पर्टिकुलर ताले में लगती है बच्चों, ठीक उसी तरीके से पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ में जोड़कर ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. और इनके सबस्ट्रेट के आधार पर इनके नाम रखे जाते हैं बच्चों. लाइक सम एंजाइम्स वर नेम्ड बिफोर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नेमिंग एंजाइम. कुछ एंजाइम्स के नाम सबस्ट्रेट के पहले ही रख दिए गए थे लाइक पेप्सिन ट्रिप्सिन एंड रेनिन which are digestive enzyme you are knowing very well. These are digestive enzymes which you have studied in 10th class also children. Pepsin, trypsin and renin. But by adding the suffix "ase" at the end of the name of the substrate, enzymes are named. लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि an enzyme is named according to the name of the substrate it catalyzes. जिस सबस्ट्रेट को यह कैटलाइज करता है जिस सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर यह ES कॉम्प्लेक्स बनाता है उस सबस्ट्रेट के नाम के साथ में ASE एस सफिक्स जोड़ देने से एंजाइम का नाम बन जाता है बच्चों. बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रोलेजेज. ओके ये हाइड्रोलिसिस का काम करते हैं. हाइड्रोलेजेज बोले तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पांसिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस into simpler and soluble forms. So children, this one is the hydrolysis. The process is hydrolysis and the name of the enzyme you are seeing hydrolases. लास्ट में ASC लगा दिया गया हाइड्रोलेजेज. और एक एग्जांपल देख रहे हैं आप बच्चों यहाँ पर सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग लाइक माल्टोज को तोड़ रहा है यहाँ पर एंजाइम. देखिए माल्टोज माल्टोज इज अ डाइसेक्राइड. कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में which are disaccharides containing two sugars, two monosaccharides in fact. So here you are seeing the hydrolysis of maltose children. maltose sugar का hydrolysis हो रहा है वाटर के साथ में जोड़कर. तो maltose टूटता है. आप जानते हैं maltose डाइसेक्राइड है जिसके पास दो मोनोसेक्राइड और दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो माल्टोज और वाटर के साथ में जुड़ता है. यहाँ पर देखिए माल्टेजेज एंजाइम का नाम माल्टेज चूंकि माल्टोज को तोड़ रहा है माल्टेज. Similarly, the enzyme which is responsible for the breakdown of lactose sugar is named as lactase. And children, the enzyme which is responsible for the breakdown of sucrose sugar is named as sucrase or invertase also. So, sucrase, maltase, lactases, polymerases जो polymerization का काम कर रहे हैं polymerases
जो फैट को तोड़ रहे हैं, लिपिड को तोड़ रहे हैं, लाइपेजेज, लिपिड में ए 80 लगा दिया गया, लाइपेजेज, ओके, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, एमाइलेजेज, जो स्टार्च को तोड़ते हैं, एमाइलेजेज। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स of the name of enzymes which are just according to the suffix ASC after the name of the substrate which is catalyzed through the particular enzyme. And you are knowing very well that enzyme just combines with the substrate to form ES complex, that is enzyme substrate complex, to catalyze the particular substrate for to channelize the reaction. So, my dear kids, after nomenclature of enzymes, now see here the specificity of enzyme. That is enzyme activators, substances that bind with the enzyme and increase its activity. Enzyme binds with the particular substrate, children, and just increases the activity of the substrate, and in this way just speed up the particular biological reaction, particular metabolic activities. That's why, my dear students, that's why enzymes are said to be as biological catalyst. तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैटलाइज कर रहा है। जहां तक केमिस्ट्री में जब आप कैटलिस्ट पढ़ते हैं तो कैटलिस्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से पढ़ते हैं। कुछ कैटलिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, जबकि कुछ रिएक्शंस को के स्पीड को डिक्लाइन करते हैं। जबकि जो एंजाइम है वह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को हमेशा स्पीड अप करता है। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर आल्सो रिमेन सेम एट द लास्ट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की लास्ट में एंजाइम एडिज रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, एंजाइम्स अलाउ द केमिकल रिएक्शंस टू अकर अंडर टाइटली कंट्रोल्ड कंडीशंस। Enzymes are catalyst in the living thing, biological catalyst in fact. Enzymes are needed for almost all the process. All biological process need the presence of enzyme. And most enzymes are proteins, as you are knowing. 99.9% enzymes are proteins except the group ribozyme, that is the RNA form, and that is not the proteinaceous form. And most enzymes named end is ज्यादातर एंजाइम्स के, अब हम भी, मैं आपको नॉमेनक्लेचर भी बता रहा था। हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर एंजाइम्स के नाम में अंत में ए 80 लगाते हैं, सबस्ट्रेट के या प्रोसेस के नाम के बाद ए 80 लगा के एंजाइम्स का नाम रखते हैं। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो इस नॉमेनक्लेचर के तरीके के पहले ही नाम उनके रख दिए गए थे, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइक रेनिन। दीज आर द एंजाइम्स which were named earlier without using the suffix ase, but polymerases, transferases, isomerases, lipases, ligases, these are the enzymes which are named by using the suffix at the end of the name of the process or name of the substrate to which the enzyme has to be catalyzed. So children, you are seeing here that enzymes are specific for what they catalyze. एंजाइम जिस भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसके लिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। मैंने पहले ही बहुत से एग्जांपल बताया। यहाँ पर देखिए, इस स्लाइड में भी आप देख रहे हैं, सुक्रेज तो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। सिमिलरली प्रोटीएज, अब आप खुद बता सकते हैं, प्रोटीएज दैट विल ब्रेक डाउन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, माय डियर किड्स। So you are seeing here the nomenclature pattern of enzymes, and this one is the classification of enzymes. You are seeing after nomenclature, यहाँ तो nomenclature देख लिया आपने, अब ये classification देख रहे हैं बच्चों। और IUB International Union of Biology has classified enzymes on the basis of reactions they catalyze। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी ने एंजाइम्स को क्लासिफाई किया है बच्चों on the basis of the reactions they catalyze। जो reactions को catalyze करते हैं उन reactions के आधार पे ही इनका नाम रखा गया है। देखिएगा यहाँ पे एंजाइम्स को 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड into 6 groups you are seeing here. Number 1 is oxidoreductases। ध्यान से समझिए easily। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इन केमिस्ट्री यू स्टडी द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप जानते हैं ऑक्सीजन का जोड़ना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का जोड़ना
और जबकि हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का निकलना, ये सब जो है ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन का जोड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन is said to be as a reduction, and this enzyme catalyze such reactions, oxidation and reaction. You are knowing very well, children, that the substance which are being oxidized are said to be as a reducing agent, and the substrate which is being reduced are said to be as oxidizing agent. जो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और जबकि जो सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड होते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। बच्चों आपको पता ही है, बिकॉज इन रेडॉक्स रिएक्शन द रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट just reduce the next substrate. Okay, so in this way you are seeing here the number one group, that is oxidoreductases. नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे इस ग्रुप के एंजाइम, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज oxidoreductases. Oxidation and reduction. Second one is transferases. Okay, transferases. This enzyme is responsible for transfer group of atom. या एक सबस्ट्रेट से जुड़े हुए ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर कर देते हैं. That's why this enzyme are said to be as transferases. Number 3. Okay, now number 3, that is hydrolases. मैं नॉमेनक्लेचर में इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो. That is hydrolases. हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को कैटलाइज करने वाले. हाइड्रोलिसिस बोले तो ब्रेक डाउन, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो हाइड्रोलेजेस ग्रुप में बच्चों सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, so many enzymes, nucleotidases, nucleosidases, all the hydrolases, all the hydrolytic enzymes responsible for breakdown of complex food material into simpler and soluble forms. Okay, number 4. You are seeing number 4 group of enzyme, that is lyases. This is very special group of enzyme, lyases, that add atoms or remove atoms to form a double bond between adjacent carbon atoms. या एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड छोड़ देता है बाय रिमूविंग द साइड चेन्स. जो साइड चेन्स है बच्चों, यह साइड चेन्स को रिमूव करके, ध्यान से सुनिएगा, यह लाइएजेस स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम, इट रिमूव्स द साइड चेन एंड लीव द डबल बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम. यह साइड चेन्स को रिमूव कर देता है और दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में यह डबल बॉन्ड बना देता है बच्चों. दैट इज स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम said to be as lyases. Okay, so in this way children you have seen the four enzymes, four group of enzymes. Oxidoreductases, देख रहे हैं आप, हर नाम के अंत में AS लगा हुआ है. Oxidoreductases. Second one is transferases, hydrolases and lyases. Four groups we have discussed. Number 5, isomerases. Children, you are knowing about isomers. 10th क्लास में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था बच्चों. आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड such structure, such compounds are said to be as isomers, and this property is said to be as isomerism. Best examples are glucose and fructose. In carbohydrate you have seen that both are monosaccharide and both have same molecular formula, that is C6H12O6. ग्लूकोज का भी फार्मूला बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है, और जबकि फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है. बट बोथ आर हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है. ग्लूकोज is belonging to aldose group, that is aldehyde derivative of polyhydric alcohol, whereas ketones belonging to ketose group. Okay, fructose, तो fructose है, fructose belonging to ketose group, that is the ketone derivative of polyhydric alcohol. बच्चों मैंने कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ाया है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल से एक से ज्यादा OH वाले जो फंक्शनल ग्रुप वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
उनके एल्डिहाइड और कीटोनिक डेरिवेटिव्स होते हैं। और अगर एल्डिहाइड डेरिवेटिव है तो ग्लूकोज, और जबकि कीटोनिक डेरिवेटिव है तो फ्रक्टोज। और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के ही C6H12O6। तो आइसोमरेजेस जो एंजाइम है, दे कन्वर्ट द पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म, आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय रीअरेंजिंग द एटम्स, या एटम्स को रीअरेंज करके बच्चों आइसोमेरिक फॉर्म में कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज आइसोमरेजेज। आइसोमर्स के अंत में ASCS लगाया गया, दैट इज आइसोमरेजेज। एंड नाउ कम टू डिस्कस द नंबर 6, दैट इज लाइगेजेज, जोड़ने वाला, एडिशन करने वाला, दैट इज लाइगेजेज use ATP to combine molecule. Basically, ligases are used to join the nucleotides. The best example is DNA ligases. So, my dear kids, this one is the classification given by IUB, that is International Union of Biology. International Union of Biology classified the enzymes according to the reaction they catalyze. एंजाइम्स जिस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उसके आधार पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी ने एंजाइम्स को यहाँ क्लासिफाई किया है बच्चों, 6 ग्रुप में आप देख रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिकैपिचुलेट करता हूँ एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को। दिस इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एज वेल एज एनुअल एग्जाम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो प्लीज बी अटेंटिव and just understand the things very carefully. The classification of enzyme has been proposed by International Union of Biology on the basis of the reactions they catalyze. Okay, so enzymes have been classified into 6 categories, which are number 1, that is oxidoreductases. नाम से ही सब आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, बहुत आसान है ये। ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। Second one is transferases, which is responsible for transfer of the group of atom from one substrate to another. Third one is hydrolases, which are responsible for the hydrolysis, that is breakdown. Basically, that all the digestive enzymes are belonging to the group hydrolases. Number 4 is special group, that is lyases. It remove or add the atoms to make the double bond between two adjacent carbon atoms. Number 5, that you are seeing children, that is isomerases. It is responsible for the conversion of the various compounds into its isomeric form. या आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में, एन ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। इट मीन्स डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स। एंड नंबर 6 यू आर सीइंग द लाइगेजेस, जोड़ने वाला, एडिशन करने वाला, दैट इज DNA लाइगेजेस। तो बच्चों यहाँ पर आपने 6 क्लासेस देखा, ध्यान से देखिएगा। यू हैव सीन 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम क्लास नंबर 1 ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, एंजाइम क्लास 2 ट्रांसफरेजेज, एंजाइम क्लास 3 हाइड्रोलेजेज, एंजाइम क्लास 4 लाइएजेज, एंजाइम क्लास 5 आइसोमरेजेज एंड एंजाइम क्लास 6 लाइगेजेज। ये 6 क्लास आप देख रहे हैं बच्चों, which is the classification of enzyme on the basis of reaction they catalyze. Okay, so this one is the classification, and mark it as very very important question for your exam. The classification of enzyme proposed by International Union of Biology. देखिए यहाँ पे मैं ये इसके डेफिनेशंस के साथ में यहाँ पे नजर आ रहा है आपको 6 क्लासेस। पहला क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, कैटलाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नोट्स में आपको इसी तरह से नोट कर लेना है, लिख लेना है बच्चों आफ्टर द क्लास। ओके, ऑक्सीडोरेडक्टेजेज, कैटलाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ट्रांसफरेजेज, catalyzing the transfer of functional group from one substrate to another. Hydrolases, catalyzing the hydrolysis reaction, that is breakdown reactions. Lyases, catalyzing the group elimination reaction to form double bond between the two adjacent carbon atoms. Isomerases, the group of enzyme catalyzing the isomerization, that is the conversion of particular compound into its isomeric form by the rearrangement of bonding. And number 6 and last group of enzyme, that is ligases, catalyzing the bond formation reactions
कपल्स विद एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी के खर्च के साथ में, हाइड्रोलिसिस के साथ में ये लाइगेजेज एडिशन का काम करते हैं। एंड बेस्ट एग्जांपल इज डीएनए लाइगेजेज। Okay, children. After classification of enzyme, now we are going to discuss about the mechanism of enzyme action. अब हम देखेंगे कि एंजाइम क्यों पर्टिकुलर है, क्यों स्पेसिफिक है, और इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें देखना होगा लॉक एंड की मॉडल। So, children, in the lock and key model of enzyme action, the active site has a rigid shape. Only substrate with the matching shape can fit. जैसे कि ताला और चाबी की बात मैंने बताया। एंड द सबस्ट्रेट इज अ की दैट फिट्स द लॉक ऑफ द एक्टिव साइट। यह देखिए एंजाइम, और एंजाइम का यह एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट यहाँ पर की का काम करेगा, जो इस एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर फिट हो जाएगा। इस रिएक्शन से, इस डायग्रामेटिक रिएक्शन से आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बच्चों कि इस एंजाइम के एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट फिट हो सकेगा, जिसका स्ट्रक्चर इस एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होने लायक होगा, वही सबस्ट्रेट जाके इस एक्टिव साइट से फिट होकर ES कॉम्प्लेक्स, दैट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना पाएगा। एंड व्हेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, then the reaction is being catalyzed through the particular enzyme and EP complex is formed। और तब जाके EP कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों, दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम इज बीइंग सेपरेटेड, एंजाइम अलग हो जाता है, क्योंकि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, आपको पता ही है। इट रिमेन्स सेम फिजिकली एंड केमिकली एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन। इसलिए यह देख रहे हैं आप, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। यह एंजाइम का एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जिसका स्ट्रक्चर इस एक्टिव साइट पे फिट होने वाला होगा, वह जाके फिट हो जाएगा और बना लेगा ES कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, and then reaction will be catalyzed and EP complex will be formed, that is enzyme product complex, and finally the product and enzymes both are being separated। और आखिरी में प्रोडक्ट अलग हो जाता है और जबकि एंजाइम अलग हो जाता है बच्चों। So after action of enzyme, let us discuss the last topic of enzyme, last topic related to enzyme, that is cofactors। कोफैक्टर्स को समझने के लिए बच्चों हमें एक चीज ध्यान देना होगा एक बार फिर से कि 99.9% एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, मींस कि मोस्टली ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। So please listen very carefully. The proteinaceous part of an enzyme is known as apoenzyme, apoenzyme, and the non-proteinaceous part of an enzyme is well known as cofactors। जो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है बच्चों, दैट इज एपोएंजाइम। तो देखिएगा यहाँ पे ग्रुप्स और मॉलिक्यूल्स जो एमिनो एसिड रेजिड्यू के अलावा है, प्रोटीनेशियस पोर्शन के अलावा है, वह कोफैक्टर्स कहलाते हैं, जिनमें मेटल्स आते हैं, कोएंजाइम्स आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आते हैं। जो टाइटली बाउंड रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड है एपोएंजाइम से, प्रोटीनेशियस फैक्टर से, which are said to be as प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, और जो एंजाइम्स विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप के हैं, उनको कोफैक्टर्स के, उनको बोलेंगे एपोएंजाइम द प्रोटीनेशियस फैक्टर इन फैक्ट, एंड एंजाइम्स विद प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर सेड टू बी एज होलो एंजाइम। जो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप के विदाउट हैं, उनको एपोएंजाइम, और जबकि जो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ में है, उनको होलो एंजाइम कहा जाएगा, क्योंकि विदाउट कोफैक्टर्स जो रहेंगे वो प्रोटीनेशियस पोर्शन रहेगा, दैट इज सेड टू बी एज एपोएंजाइम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। So see here, the cofactors can be inorganic ions, metallic ions, or coenzymes like NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, FAD, flavin adenine dinucleotide. Okay, and some cofactors bind to the enzyme protein very tightly, and they are thus called as prosthetic group। तो बहुत टाइटली जुड़े हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और जो लूजली अटैच्ड हैं उनको कहा जाता है कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल्स हैं पेरोक्सिडेजेज, ओके, कैटलेजेज, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल हैं। और जबकि जो लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स हैं उनको कोएंजाइम कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया भी पीछे, NAD और FAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FAD दैट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों कोएंजाइम्स आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों, इनके यूजेज कि प्लांट फिजियोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इन कोएंजाइम्स का यूज होता है, NAD का और FAD का।
So coenzymes usually function as transient carriers of specific function groups. Coenzymes can act as co-substrate also in plant physiology. Vitamins and metallic ions are also belonging to the cofactors, which are non-proteinaceous factor of an enzyme. Okay, children. So in today's class, we have discussed about enzyme. आप देख रहे हैं बच्चों इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पहले क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स उसके टाइप्स के बारे में देखा, दूसरे क्लास में प्रोटीन और उसके चारों स्ट्रक्चर्स को देखा एमिनो एसिड्स के साथ में, बिकॉज एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। और आज बच्चों हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम on the basis of their functioning, the reactions they catalyze, as well as we have seen the action of enzyme also, which is based on the lock and key model, and finally we have seen the cofactors. So my dear kids, in this way we have completed three biomolecules. In the next class we shall start the next biomolecule. Thank you very much.